First, okay. So welcome to the class. Abu Zar, Afaq Amjad, Fatima, Khizar, Mubin, Muhammad Suleiman, Tehreem, Zarwa. Welcome, and welcome to the physical students as well. अब यहाँ पे पहला सवाल का जवाब जो है वो हमारे हमसे पूछा कि जी मैंने मुख्तलिफ टोपोलॉजीज कल आपके सामने एक्सप्लेन की और मैंने आपको बताया कि लाजमी टोपोलॉजी है क्या कि when you connect the devices together, definitely it takes some shape, and that shape is called topology. That shape is called topology. Although I am talking about the physical topology now, I can talk about the logical topologies as well. फिजिकल टोपोलॉजी में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिजिकल टोपोलॉजी. अब अगर लैन में है तो लैन में भी डिवाइसेस छोटे उसमें लैन, जैसे हमारी क्लास, ये क्लास है, एकेडमी है, दैट इज लैन. मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ लैन्स मौजूद हैं. इडियोरॉम का, सिस्को लैब का, चेयरमैन सीएससी का, एडमिन 2 का, एडमिन 3 का, एडमिन का, मल्टीपल लैन्स, वायरलेस लैन्स, बट है लैन्स, लोकल एरिया नेटवर्क. So when these local area networks devices are connected to one another, we call it a topology. Now it can be a LAN topology or it can be a WAN topology. It can be a LAN topology or it can be a WAN topology. Yeah, geometric shape of a network of the devices connected to a network may be a right word. Geometric shape of the devices connected to a network form a topology. ठीक है मोहम्मद सुलेमान. अब अगर आपने कहा कि जी लैन में किस किस्म की टोपोलॉजीज हो सकती हैं, इट कैन बी बस टोपोलॉजी, इट कैन बी ए स्टार टोपोलॉजी, इट कैन बी एन एक्सटेंडेड स्टार, ठीक है. वाइल इन दी वैन हमने आपको बताया इट कैन बी अ रिंग टोपोलॉजी. These are the topologies which are mostly implemented in the local area network. अब if we are on the WAN, it may be a point-to-point link. It may be a point-to-point link. Number 2, it can be a hub and spoke. Hub and spoke. It can be, number 3, mesh. And it can be a partial mesh. ठीक है. मकसद क्या है? मिसाल के तौर पे इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूं. अगर ये बस है तो मैं लैन पे ग्रीन से इस्तेमाल कर लेता हूं. तो ग्रीन में अगर आप देखें तो दिस इज द बस and devices are connected to this bus and can communicate with one another, so what type of topology it is? Bus. Then हमने कहा स्टार, you have a central point and the devices are connected to it, so it looks like a star. It is a star topology. Then हमने कहा एक्सटेंडेड स्टार. एक स्टार आपने इस बिल्डिंग में बना लिया, एक स्टार आपने दूसरी बिल्डिंग में बना लिया. लाजमी तौर पे नेटवर्क का ये मतलब तो नहीं है कि आप इनको अलग अलग रखें. मिसाल के तौर पे एक बेसिक साइंसेस का ब्लॉक है, एक हमारा डीसीएसी का ब्लॉक है, नीड टू बी कनेक्टेड. तो व्हाट नीड टू बी डन? सिंपली कनेक्ट विद वन अनदर. सो व्हाट आई कॉल इट? एक्सटेंडेड स्टार. फिर ये भी हो सकता है कि जी यू हैव ए रिंग and devices are connected to the ring. Devices are connected to the ring. In this way again, this device can communicate with this one. This device too can communicate with this one. Any device can communicate with another in a small area, LAN. So we talked about all of them in the yesterday's class. फिर हमने point WAN पे आए, wide area. Like our UET want to be part of the world. Our UET wants to be part. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो माशाल्लाह इतने
ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, इसका मतलब है कि मैं यूईटी से बाहर निकल रहा हूं, मैं यूईटी के इस कमरे तक महदूद नहीं हूं। इसका मतलब है कि आई वॉन्ट टू रीच टू द वैन, एंड व्हेन आई वांट टू रीच टू द वैन आई बिकम द पार्ट ऑफ द वैन, my this land become part of the van. How it can be done? The question is how it can be done. The simple answer is this is my UET. Sorry, this is my UET. And I understand that how I can reach to the UET, to the world by connecting myself to an ISP, internet service provider. Internet service provider. So one of the option is that I should get a point-to-point link between me and my ISP. And in your case, in UET, this ISP is Nayatel. Nayatel. Nayatel is a company, is an ISP. So here, what type of this connectivity or topology is? Point-to-point. क्यों सीआर साहब, समझ आ रही है? ना समझ आए तो क्लास में जैसे आराम से बैठे रहते हैं, कम से कम यहां ना बैठना, जब तक ये बात क्लियर ना हो, ना मैं कमरे से बाहर जाऊंगा ना आप जाए। ठीक है? क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, द क्वेश्चन इज कि जी आईएसपी कैसे कनेक्टेड है। वेरी गुड, दिस आईएसपी Nayatel is connected, for example, to PTCL, which is a larger. PTCL is connected to the rest of the world. Agree? तो ये आईएसपीज आपस में मिली हुई हैं। तो आपको यहां पर भी और डीसीएन में भी बताऊंगा कि किस तरह आईएसपीज एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने पूरी दुनिया को मिलाया हुआ है। तो जो भी आईएसपी किसी भी आईएसपी से मिल जाए वो सब मुसलमान हो जाते हैं। मेक सेंस ना? मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। फहद, ठीक है। हियर इज द क्वेश्चन, सर इनका मेन ओरिजिन कहाँ है? सिंपल, आप जहां तक मुझे आपके सवाल से समझ आई कि आईएसपी है कहां। मिसाल के तौर पे जो आईएसपी, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको पीटीसीएल की, तो ये चीफ बर्गर के सामने, चीफ बर्गर तो आपने माशाल्लाह सबने विजिट किया हुआ है, उसके सामने एक बिल्डिंग है पीटीसीएल की, वहां पे हमारी आईएसपी लगी हुई है पीटीसीएल की पिशावर में। मेक सेंस टू यू? ये क्वेश्चन था आपका मुबीन? यस सर, ओके नाइस। इस तरह रावलपिंडी में जगह का क्या नाम है, और मुझे जगह का नाम भूल गया, लेकिन हर शहर में हमारी आईएसपीज है, एंड दीज आईएसपीज कनेक्टेड टू द पाई। पाई एक जो है वो इस्लामाबाद में है, एक जो है वो लाहौर में है, एंड इस तरह हम आगे अपना वैन आगे एक्सटेंड करते हैं। यू आर वेलकम मुबीन। आगे बढ़ते हैं जी। तो जी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो स्टार्टेड है, लेकिन थैंक्स कि आपको इसका ख्याल रहे। रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। ठीक है? तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट, आपकी यूईटी इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है? अब नंबर 2 पे अगर मैं आऊं, विच इज हब एंड स्पोक, तो मैंने कल भी एग्जांपल दी थी और मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था, नाम बताया था त्रिशूल। तो बिल्कुल ये स्पोक का मतलब त्रिशूल, जो इंडियन मूवीज में आपने देखा होगा कि जी आपके मुख्तलिफ यू लाइक दिस, और अगर आप खाना खाते हैं छुरी कांटे से तो कांटा भी इसी शेप का होता है, उसको स्पोक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मिसाल मैंने कल ये दी थी कि अगर आपका एक तरफ यूटी की एग्जांपल ले लेते हैं, एक एबटाबाद में आपका कैंपस है, एक जलौजई में आपका कैंपस है, एक हैदराबाद में आपका कैंपस है, एक बन्नू में आपका कैंपस है, और एक आपका मेन कैंपस है
मैं लेता हूं जी क्वेश्चन आपके चैट से, मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर लूं, फिर आप जिसका भी जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करता हूं। ये आपका मेन कैंपस है। एक तरीका तो ये है कि हर एक कैंपस अपने आईएसपी के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक ले और इंडिपेंडेंट रहे। दूसरा तरीका ये है कि फिर आपको लागत हर एक पे स्टाफ, हर एक पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पूरी फैसिलिटीज हर एक पे रखनी होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप अहमदाबाद को भी मेन कैंपस से मिला दें, जलजोई को भी मिला दें, हैदराबाद को भी मिला दें, बन्नू को भी मिला दें और इस मेन कैंपस को दुनिया से मिला दें। तो ये क्या, यही थ्रेशोल्ड जो मैंने अभी बनाया था खड़ा, अब क्या लेटा हुआ वही नहीं बन गया? तो दिस सच ए टोपोलॉजी इज कॉल्ड हब एंड स्पोक। हर चीज के ये नहीं होता कि हर इसका नुकसान, लाइन तो हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। क्योंकि अगर फहद सिर्फ नुकसान ही होता तो वो चीज उठा के दुनिया बाहर फेंक देती। तो इसका मतलब है कि इसका कुछ फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो दिस सच टोपोलॉजी इज कॉल्ड हब एंड स्पोक। थर्ड हमने तरीका ये कहा कि जनाब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हम एक तरीका इन डिवाइसेस को मिलाने का ये है कि हम तमाम डिवाइसेस, नेट करें हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, हम हर डिवाइस को दूसरी डिवाइस से मिला देते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर लेट करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या 1 ने अगर 2 के पास जाना है पॉसिबल है? यस। 2 ने 3 के पास जाना है पॉसिबल? यस। 3 ने 1 के पास जाना है पॉसिबल है। 3 ने 2 के पास जाना है। तो दिस इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि 3 पे तो इट्स नाइस, सीम नाइस, लेकिन अगर 10 हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके एक डिवाइस को हर नो के साथ, बाकी नो के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर ये नंबर मिलियंस में हो तो फिर तो दुनिया में तारों के अलावा कुछ भी नहीं नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा था कल कि जनाब ये नंबर ऑफ लिंक्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, ये नंबर ऑफ लिंक्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है यहां पे कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा 3? इसका मतलब अगर नोड्स की तादाद 3 है तो लिंक्स मुझे कितने चाहिए? फार्मूला मैंने बता दिया कि 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो आप देख रहे हैं यहां 3 चाहिए थे, 1 2 3, बाई डायरेक्शनल लिंक, बाई डायरेक्शनल लिंक। इसी तरह अगर 4 कर दूं तो 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2 6, एक नोड इंक्रीज की 3 लिंक्स बढ़ गए, डबल हो गए। 5 करता हूं तो 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 10, डबल नहीं हुए लेकिन काफी इंक्रीज है। अगर 10 होते तो 10 इंटू 9 90 डिवाइड बाई 2 45। तो आप देख रहे हैं कि लिंक्स बहुत ही ज्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए इनको संभालना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। इसलिए हमने कहा कि जी मैश अच्छा तो है, क्योंकि हमारा, याद रखो, हमेशा हमारी एक ख्वाहिश होती है कि नेटवर्क्स में रिडंडेंसी हो, यानी अगर कोई चीज फेल भी हो जाए फिर भी हम कनेक्ट हो सके, फिर भी हम कम्युनिकेट कर सके, फिर भी हम रिसोर्सेज शेयर कर सके। मिसाल के तौर पे अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, अभी भी हम 3 2 1 2 आपस में बात कर सकते हैं। कैसे? 1 3 के पास जाएगा, 3 2 के पास भेज देगा, कम्युनिकेशन हो गई। गुड। यही हम चाहते हैं कि फेलियर का ये मतलब ना हो कि बस अरसल आड़ा। नो, नॉट एट ऑल। तो इसके लिए हमने फिर क्या कहा? हमने कहा पार्शियल मैश में जहां आप समझते हैं कि आपको मैश चाहिए करो, जहां इग्नोर कर सकते हो, जहां बचा सकते हो अपने आप को बचा लो, ताकि आपके नंबर ऑफ लिंक्स कम हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास 4 नोड्स हैं, मेरे पास 4 1 2 3 एंड 4, you may form a mesh here, but
अब अगर आपने चौथे से मिलाना है तो आपने देखा कि आपको 3 लिंक्स और ऐड करने पड़ेंगे, यहां, यहां और यहां। इसके बाद किसी एक को इससे कनेक्ट कर दो तो मैश नहीं रहा, पार्शियल मैश है। कुछ बात क्लियर हो गई? तो यही आपका सवाल था, जिसके लिए मैंने सारा। अब मैं लेता हूं चैट को। चैट कहता है कि सर कनेक्शन बिटवीन आईएसपी एंड पीटीसीएल इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इट डिपेंड्स हरीम खान। द कनेक्शन बिटवीन तो ये बताऊंगे पीटीसीएल ही आईएसपी है, हरीम, पीटीसीएल ही आईएसपी है, ठीक है। वो पूरे पाकिस्तान का आईएसपी है, ओके। लेकिन यस, इट्स पी टू पी, ओके। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हम, यानी कि यूईटी, बिकॉज यू आल्सो रिमेन पार्ट ऑफ यूईटी, व्हेन यूईटी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क, पार्ट ऑफ द वैन, इट कनेक्ट्स, इट मे कनेक्ट वाया पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मैंने अगेन वर्ड यूज किया मे, लाजमी नहीं। इट माइट बी कि ये एक डीएसएल कनेक्शन ले लेते, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक, सॉरी, एक पॉन ले लेते, एक एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क ले लेते जो कि डेडिकेटेड ना होता, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट इज डेडिकेटेड। वेदर यू गॉट माय आंसर हरीम खान, or still there is some confusion? Okay, nice. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। जी बिल्कुल, आपकी मर्जी। कहीं पे आप बस करें, कहीं स्टार करें, कहीं स्टैंडर्ड स्टार, कहीं रेंज, यस, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। एज यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ, आपकी मर्जी कि हाउ यू कनेक्ट दे। LAN is always administered by some organization, and that organization is responsible, however, how they implement it, how they configure it. ओके जी, तो आई एम बैक। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आज का टॉपिक ये है, बल्कि एक स्लाइड पीछे चला जाऊं, ये हम पढ़ लिए थे कल कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। इसमें मैंने एक और ऐड किया था, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है फहद कि अगर आपका डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से बात करे और ये कम्युनिकेशन ऑलवेज वन साइडेड हो, इस किस्म की कम्युनिकेशन क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। अब अनीस कहेगा ये कैसे मुमकिन है? भाई आप अपने घर में टीवी देखते हो, तो टीवी को आपको तो वो जितनी भी झूठी खबरें देना चाहे दे देता है। आपने कभी भी उसको एक अच्छी खबर नहीं दी कि जी ये वाली अच्छी खबर ये है या दुष्ट खबर ये है, तो इट इज ऑलवेज सिंप्लेक्स। इस तरह रेडियो, हाँ, तो क्या अब हमारे कल्चर में रेडियो का वो कम हो गया है, लेकिन कभी गाड़ी में चलते हुए आपने कहीं रेडियो ऑन किया हो तो आप उनको सुन रहे होते हैं, लेकिन आप कभी अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते। तो दिस बिकम एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। समझ आ गए? फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके और आपके डेस्टिनेशन के दरमियान बात तो दोनों डायरेक्शन में होगी, बात तो दोनों डायरेक्शंस में होगी, लेकिन जब आप ट्रांसमिट कर रहे होंगे वन, तो रिसीव नहीं कर रहे होंगे, और जब रिसीव कर रहे होंगे तो ट्रांसमिट नहीं करेंगे। यानी जब बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, और जब सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं। कैसे? आसान सी एग्जांपल लेते हैं। इसकी आसान एग्जांपल जो है वो पुलिस रेडियो। आपने देखोगे पुलिस वालों ने यहाँ पे अपना वो डिवाइस लगा रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली सुन रहे होते हैं, लेकिन जब उन्होंने बात करनी होती है तो फिर जरूरी है कि पहले वो उधर वाला खामोश हो। स्पेशली आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि जब वो पुलिस से अपनी बात करते हैं और जब उनकी बात खत्म हो जाती है तो एक खास कोड वर्ड, मिसाल के तौर पर रॉजर, रॉजर, इसका मतलब है कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्ड, नाउ इट्स टर्न यूर टर्न। तो एक बंदा एक वक्त में, इट इज टू डायमेंशनल, टू डायरेक्शनल,
बट नॉट साइमल्टेनियस, बट नॉट साइमल्टेनियस। ठीक है, तो हमने ये बात, इसका मतलब ये हुआ आसानी के लिए कि ये दो मैंने कलर इस्तेमाल किए, असल में ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये दो नहीं है बल्कि एक ही चैनल है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में और आपके हमसाये के घर के दरमियान में पाइप पड़ा हुआ है, कभी आप उधर से पानी डालते हैं तो उसको मिल जाता है, और कभी वो उस पर पानी डालता है तो आपको मिल जाता है। तो पाइप चैनल एक ही है, पाइप एक ही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इधर से आप भी पानी डाल रहे हो उधर से वो भी पानी डाल रहा हो। गेटिंग? फिर हमने तीसरा पढ़ा, और इसकी एक एग्जांपल जिसको हम काफी अच्छे उसमें पढ़ना चाहेंगे, दैट इज योर वायरलेस लैन। दैट इज योर वायरलेस लैन। जिस तरह अब मैं इस वक्त कनेक्टेड हूं, और स्पेशली मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आई एम यूजिंग हियर वायरलेस लैन। दिस कम्युनिकेशन इज आल्सो हाफ डुप्लेक्स। जब मैं अपने एक्सेस रूटर को दे रहा होता हूं तो एक्सेस रूटर उससे सिर्फ ले रहा होता है, और जब मैं एक्सेस रूटर मुझे दे रहा होता है कुछ चीज, तो मैं उसको उस वक्त कुछ दे नहीं सकता। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, आप ये एज्यूम करें कि देयर इज सिंगल पाइप बिटवीन माय लैपटॉप एंड द एक्सेस रूटर। गॉट इट? उसके बाद कल मैंने एक्सप्लेन किया फुल डुप्लेक्स। तो अनीस, फुल डुप्लेक्स का मतलब यह है कि दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं, वन और टू, और ये दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली चलता है। तो अब तो लाजमी है कि मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूं, और अब मैं इसके ऊपर, एक के ऊपर ग्रीन हाईलाइटिंग करता हूं और एक के ऊपर ब्लू हाईलाइटिंग करता हूं, ताकि क्लियर हो जाए कि ये दो अलग अलग चैनल्स हैं। जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो तो आप इधर से आप उसको कुछ सुना रहे होते हो, और वो उधर से आपको कहता है चुप से करना, जमाम आ रहा, मेरी भी बात सुनो। इसका मतलब बहुत डायरेक्शन में हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। Mubin, sir, what is if all share the screen? So is not it be full duplex instead of half? Screen share the screen? Oh, अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं, जूम की बात कर रहे हैं, कि आप ये कह रहे हैं कि आपको फील ऐसा हो रहा है कि शायद ये कोई हाफ डुप्लेक्स है। दो, ये देखें, आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, या चैट में मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, आप भी उधर से कुछ लिखे, मुबीन कुछ भी लिखो, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, आप मेरा नाम लिखो, और मैं सेंड को जब सेंड कर बटन प्रेस कर रहा हूं, ये मैंने कर दिया, आप भी यहां से अगर इसी टाइम में कर देते तो इसके मतलब दिस इज दी बाई डायरेक्शन। देखें, आपने भी ये किया, तो इसके मतलब दिस इज बाई डायरेक्शनल, इसके मतलब इट इज फुल डुप्लेक्स। हाँ, अगर ये होता कि भाई मैं यहां से आपको दे रहा हूं और फिर आप वेट करते कि जी जब एहसान भेज दे तो फिर मैं भेजूंगा, तो फिर हम कहते हैं ये हाफ डुप्लेक्स है। और अगर सिर्फ मैं भेज सकता हूं और आप कभी भी ना भेज सकते, तो फिर हम कहते हैं ये सिंप्लेक्स है। आपने जो एग्जांपल ली मैं उसको समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं जिससे स्क्रीन शेयर है, तो मैंने यहां से स्क्रीन शेयर की हुई है तो आप नहीं कर सकते। वो इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर हम सभी अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करने लग शुरू कर दें तो यहाँ पे किसी की स्क्रीन दिखाई देगी और हम समझेंगे क्या। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि दैट इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेयर वन पर्सन विल बी सेंडिंग एंड अदर विल बी लिसनिंग और अदर विल बी वॉचिंग, इसलिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रखी कि एक बंदा शेयर करेगा एक वक्त में। गॉट इट? बट दिस कम्युनिकेशन, जूम कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स। सिर्फ स्क्रीन की बात है, वॉइस को बोला सिर्फ स्क्रीन की बात है, तो ये सिंप्लेक्स नहीं बन जाती क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लेकिन वो अपनी स्क्रीन ही ब्रॉडकास्ट कर रहे अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन बंद कर दूं तो आप कर सकते हैं, इसका मतलब अगर सिंप्लेक्स होता, जैसे आप फात कह रहे हैं, इसका मतलब कि कभी कभी तो रेडियो पाकिस्तान, कभी भी जियो तो कहता कि अब तुम भी भेज दो, हम कहते जरा बंद करो, हम भी कुछ ऐसा खबरें तुम्हें देना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इसको सिंप्लेक्स नहीं कहूंगा। ठीक हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं जी, आज के टॉपिक पे आते हैं। ये कल के टॉपिक से जो हमने पढ़े, अब हम बात कर रहे हैं can't we have our wireless LAN full duplex? Afaq, no. आफाक और उसका जवाब दिस इज ITN। कुछ थोड़ा सी यहाँ पे दे दूंगा,
डिटेल में वायरलेस के स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में जब आप आएंगे, बल्कि आप ऑलरेडी हैं लेकिन आज क्लास में नहीं आते, और आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद मैं फुल पावर के साथ आऊंगा, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि वायरलेस लैन में फुल डुप्लेक्स पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आ रहे हैं एक्सेस कंट्रोल की तरफ। एक्सेस कंट्रोल, और अगर मैं सही लफ्ज इस्तेमाल करूं तो मैं इसका एक और वर्ड ऐड करता हूं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल, तो मीडियम एक्सप्लेन करूंगा, एक्सेस कंट्रोल इस्तेमाल एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इस एक चीज को 3 चीजों में डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे लिए समझाना आसान और आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो जेंटलमैन, मीडियम हर उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, उसको मीडियम कहते हैं। वो एयर भी हो सकता है, वो कॉपर भी हो सकता है, वो फाइबर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स ग्रेट। तो दिस इज कॉल्ड मीडियम। अब इस मीडियम को हर डिवाइस जो कि कुछ भेजना चाहता है, वो इस मीडियम का तलबगार है कि मुझे मीडियम मिले कि मैं अपना डेटा भेजूं। अब ये मीडियम डेडिकेटेड भी हो सकता है, ये मीडियम डेडिकेटेड भी हो सकता है, ये मीडियम डेडिकेटेड भी हो सकता है। यानी कि जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो बस सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। आप कहेंगे जी ये कैसे मुमकिन है? तो आसान सी एग्जांपल, एक बार निकल सकते। तो एग्जांपल आपको ये दे रहा हूं अभी एक एक चंद सेकंड में, कि मेरे पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वायर यूटीपी केबल है, एक यूटीपी अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब इस केबल से मैं, जैसे कि अभी मुझे ये केबल मिल गई, ये है जी एक केबल जिसके 2 एंड के ऊपर RJ45 कनेक्टर लगे हुए हैं। एक मैंने अपने डिवाइस में लगा दिया लाइक दिस, ये लगा दिया, और दूसरा एंड लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने स्विच में लगा दिया। अब मैं यहां से कोई भी अपना डेटा भेजूंगा, क्या इस मीडियम को कोई और इस्तेमाल कर सकता है? नॉट एट ऑल। दिस इज डेडिकेटेड। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए डेडिकेटेड मीडियम। चलें जी। अब मैं आता हूं कि डेडिकेटेड नहीं है, शेयर्ड है। क्या है? शेयर्ड है। एक बताया कि डेडिकेटेड, और आपको समझ भी आ गई डेडिकेटेड का मतलब दैट इज ओनली फॉर यू। इफ यू यूज इट्स योर, इफ यू डोंट यूज स्टिल इट्स योर्स। ठीक है ना जी? शेयर्ड का मतलब है कि नहीं, ये मीडियम मौजूद है लेकिन मल्टीपल लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपकी मिसाल अभी मैंने आपको दी कि ये आपका एक्सेस रूटर है, ये आपका एक्सेस रूटर है, और यहां पे आपके मुख्तलिफ लैपटॉप्स हैं, L1 L2 L3 LN। Everyone, if wants to communicate with the access router, what medium it is using? Dedicated? The answer is no. The answer is a big no. It is not dedicated. It is shared. This medium is shared between L1, L2, L3 and LN. अब अगर ये शेयर्ड है, अगर ये शेयर्ड है, तो इसको हासिल करने का कोई तरीका होगा, क्योंकि अगर सबने एक ही वक्त में हासिल करने की कोशिश की, जैसे आपने देखो म्यूजिक चेयर की जो गेम होती है, तो उसके गिर्द घूमते रहते हैं, तो जो उस पर बैठ गया वो उसका चेयर उसकी हो गई, और जो नहीं बैठ सका वो हार गया, वो बाहर जाएगा। तो हाउ यू एक्सेस, वहां पे रूल क्या है, मेथड क्या है, एक्सेस मेथड कि जी यू हैव टू लिसन टू द म्यूजिक।
और आपने चेयर के करीब अपने आप को रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई मेथड होगा कि हाउ यू विल एक्सेस दिस शेयर्ड मीडियम, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, क्लियर? अब अगर आपने एक्सेस कंट्रोल किया तो इसके दो मेथड हो सकते हैं एक्सेस कंट्रोल करने के। एक्सेस हासिल करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो कोई ऐसा रूल बना दिया जाए जिसके जरिए आपको कंट्रोल किया जाए, जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस, जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस। और या जो हासिल कर ले वही ठीक, यानी कि कंटेंशन करे, लड़ाई करके आपने लिए हासिल करे, कोई रूल नहीं है। रूल है लेकिन ये भी तो एक रूल है कि लड़ाई करके हासिल करो। समझ आ रही मेरी बात? ओके, पहले कंट्रोल को क्लियर कर देता हूं क्योंकि आसान है, और उसके बाद कंटेंशन बेस पे आ जाता। तो अब मैं पहले बात कर लेता हूं कंट्रोल्ड की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं एक रूल यहां बना दूं कि जनाब जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सॉरी फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, ये मुझ पे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन के लिए रूल ये रख दिया कि जिसके पास माइक होगा वो क्वेश्चन करेगा सिर्फ। और रूल ये है कि अगर इसके मिसाल के तौर पर सबसे आगे जो है वो नदीम बैठे हैं, नदीम अगर क्वेश्चन है तो करें, नहीं है तो अपने एडजस्टेंट पार्टनर को माइक हवाले कर दी। इसका मतलब है कि अगर इसके पास क्वेश्चन नहीं है, अनीस फिर भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। साथ दूसरा बंदा बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में भी उसका नाम नोमान है, एज्यूम। नोमान के पास जब माइक आया, अगेन उसकी वो अगर क्वेश्चन है तो वो कर लेगा, नहीं है तो फिर नुलाक के पास जाएगा। अगर नुलाक के पास क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं है तो फिर फाद के पास आएगा। अगर फाद के पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर अनीस के पास आएगा। एंड इन दिस वे दिस माइक विल रोटेट इन द क्लास। ये कौन सा मेथड हुआ? कंट्रोल्ड एक्सेस। ये कौन सा मेथड हुआ? कंट्रोल्ड एक्सेस। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। इसकी दो एग्जांपल आपको ये दूंगा। एक है टोकन रिंग। टोकन रिंग एक एग्जांपल कंट्रोल्ड एक्सेस की क्या है? टोकन रिंग। कैसे टोकन रिंग काम करता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ यूं काम करता है कि आपका एक रिंग होता है और इस रिंग के साथ मुख्तलिफ आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है। लाइक दिस। अब अगर ये सबके सब, मिसाल के तौर पे अगर ये 1 3 के साथ बात करना चाहता है, और उसी वक्त ज्यूम कर लो कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, अगर ये 6 साहब जो है ये 2 के साथ बात करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कलर इनके ऊपर थोड़ी सी वो लगा देता हूं तो आगे आपको नजर आए। 6 वांट टू टॉक टू 2। भाई मीडियम तो शेयर्ड है, डेडिकेटेड नहीं है, शेयर्ड है। आपने समझ लिया कि शेयर्ड मीडियम किसे कहते हैं? शेयर्ड मीडियम किसे कहते हैं? तो इस शेयर्ड के जरिए आना है तो कोई रूल तो होना चाहिए। और हम कौन सा मेथड करना चाहिए? कंट्रोल्ड। इस कंट्रोल मेथड यहां पे क्या है कि इसमें कोई एक नोड, एक ऐसा, ओके जी आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने ये तो कंफर्म कर दिया कि ये जो मीडियम है हमारा, ये जो हमारा मीडियम है ये शेयर्ड है। ये मीडियम जो हमारा ये शेयर्ड। तो लाजमी तौर पे यहाँ पे वो माइक वाला सिस्टम चलना चाहिए कि जिसके पास माइक, जिसको यहाँ पे टोकन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टोकन। तो मिसाल के तौर पे अगर 1 के पास टोकन है तो वो अपना पैकेट 3 की तरफ या किसी की तरफ भी भेज सकता है। और इस टोकन, इस रिंग में ट्रैफिक सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नॉट बोथ डायरेक्शन।
तो हम एज्यूम करते हैं कि चले जी ये इस डायरेक्शन से ट्रैफिक इसमें जा रही है, तो 1 से आएगी 2 पे, 2 देखेगा कि ट्रैफिक मेरी नहीं है, वो आगे भेज देगा 3 को, 3 ले लेगा, और फिर टोकन जो है वो वापस रिलीज किया जाएगा। वो टोकन वापस 1 के पास आएगा, 1 देखेगा मेरे पास और ट्रैफिक नहीं है, वो उस टोकन को रिलीज कर देगा। रिलीज करेगा तो वो टोकन वापस 2 के पास आएगा। अब 2 की बारी है, अगर उसके पास है तो वो उसके साथ अपना डेटा लगा के अपनी डेस्टिनेशन को भेज देगा, अगर नहीं है तो वो अपने टोकन को रिलीज कर देगा, जाओ 3 के पास। तो यहां पे अब मर्जी नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड एक्सेस का मेथड है। अगर कोई और टोपोलॉजी है तो देन यू मे यूज द आर्कनेट, where if it is the star or if it is a bus, ArcNet will work. लाजमी तौर पे हर डिवाइस जब कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, उसकी एक आईडी होती है, तो उस आईडी की बेस के ऊपर उसको टर्न मिलेगी। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से इवन आपकी जो, ये तो 2 नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क से एग्जांपल्स हैं। टेलीकॉम इंजीनियरिंग में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो होता यह है कि एक ही चैनल, लेट करें कि ये 3-4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन रियलिटी 30 लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे होता है कि अब पहले नदीम को चांस देंगे, नदीम को 1 माइक्रोसेकंड दिया, 1 माइक्रोसेकंड में जो भी इसने बोल दिया वो हमने भेज दिया या स्टोर कर लिया। अगला माइक्रोसेकंड नुरलक का है, अगला फहद का है, अगला समीन का है, और फिर वापस इसका। इस 4 बंदों से एक जो वो बना है, इसको हम कहते हैं ये एक फ्रेम है, जो कि एक्चुअल मैंने कहा 30 का होता है, लेकिन यहां पे समझाने के लिए मैंने 4 कहा। तो 4 लोगों का एक फ्रेम बनता है, भेज दिया जाता है, वापस इसके पास आऊंगा, फिर इससे लूंगा, फिर नुलाक से लूंगा, अगर नुलाक के पास नहीं है तो इसका वो स्लॉट खाली जाएगा, फिर उसके बाद फाद, फिर अगेन अनीस, वापस एक दूसरा फ्रेम बना, ये भेज दिया, फिर इसके पास आया, अगेन इट इज कंट्रोल्ड। मेक सेंस? इट इज कॉल्ड टीडीएम। दिस इज कॉल्ड time division multiplexing, based upon the time I am taking the data from first microsecond, third, second, third, fourth, फिर 5, 6, 7, 8 and so on. Got it? आगे चलते हैं जी। Is there any question? Please come on. हाँ, that is the disadvantage. हमने पहले कहा कि बाद जगहों पे हम ये नहीं कह सकते कि जी यही सबसे बेहतर है। लाजमी तौर पे हर चीज के कोई प्रॉस और कुछ कॉन्स होते हैं। तो आपने ठीक कहा कि यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे नुलाक के पास डेटा है ही नहीं, एक आधा घंटा उसका वो स्लॉट खाली जा रहा है इन द टीडीएम। यस, अगर यहाँ पे देखें तो भाई 1 के बाद सिर्फ डेटा 1 और 3 के पास है, लेकिन उसको अपनी पूरे 7, अगर यहाँ पे जूम कर लें कि 6 लोग हैं, उसको 6 टाइम्स वेट करना होगा। तो फायदा नुकसान तो ये है डिले का, लेकिन फायदा क्या है? अभी हम बात कर रहे थे, दोबारा करता हूं, कोलिजन नहीं होगी, किसी सूरत भी कोलिजन नहीं होगी। कभी भी 1 का डेटा 2 के साथ कोलाइड नहीं करेगा, कभी भी 2 का डेटा 3 के साथ कोलाइड, क्योंकि कोलिजन जितनी ज्यादा होती है उतना नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो वी हैव टू टेक अ बैलेंस। मेक सेंस? इसमें एक रेटिंग सिस्टम नहीं लगा सकते? फर्स्ट करें, अगर हमें पता है कि 3 साइकिल्स के अंदर एक बंदा अलग ही रहा है, उसके टाइम को आगे खत्म करते हैं जब तक वो नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट, फिर उतना ही उसके टाइम की वैसे ही। उसका एक तरीका है जो आपने कहा, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसमें हम बेस्ड अपॉन डिमांड, कि अगर वो डिमांड करेगा फिर हम उसको देंगे, और जब डिमांड नहीं करता तो उसको भूल जाओ। वापस आता हूं जी अपने टॉपिक की तरफ, ते जिसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि कंट्रोल्ड एक्सेस किसे कहते हैं। अब मैं आ रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी कंटेंशन बेस्ड।
ठीक है मुबीन। सो यहां पे हम कंटेंशन में हम एक चीज तो ये बताता चले कि कंटेंशन बेस्ड जो होता है दैट इज हाफ डुप्लेक्स, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, थोड़ी देर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे मैं आपको दो तरीके बताना चाहता हूं। एक का नाम है CSMA-CD, और इसको मैं दो पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक विद पर्सपेक्टिव ऑफ हब्स and number two with the perspective of the bus। और नंबर टू मेथड जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा दैट इज दी CSMA-CA, that is used in your today in your WLANs, जिसको आप वाईफाई भी कहते हो, जिसको आप वाईफाई भी कहते हो। अब क्या मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि अब इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड है, हर एक ने अपने अपना डिसीजन खुद लेना है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दोनों में तीन तीन टर्म्स हैं। इन तीन दोनों में पहली टर्म है कैरियर सेंस, दूसरा टर्म है मल्टीपल एक्सेस, और तीसरा है कोलिजन डिटेक्शन। CS कैरियर सेंस, MA मल्टीपल एक्सेस, CD कोलिजन डिटेक्शन। अब एक्सप्लेन करता हूं कि इन तीनों का मतलब क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैरियर सेंस का मतलब ये है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो। गाड़ी भी आप ड्राइव करते हो तो आपको कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं कर रहा होता कि भाई अब आप अपनी गाड़ी जो है वो मिसाल के तौर पे रोड 2 पे डाल सकते हो, अब आप अपनी गाड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे डाल सकते हो, अब आप अपनी गाड़ी जो है खैबर रोड पे डाल सकते हो। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दी जाती। यू हैव टू टेक दिस डिसीजन योरसेल्फ। तो यहां पे भी है कि फर्स्ट यू हैव टू सेंस द कैरियर, कैरियर मींस सिग्नल। अगर कोई किसी और का सिग्नल है तो तुम अपने आप को रोक लो। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल ये दे सकता हूं कि अगर आप अपनी इस यूटी से ही आउट गेट से गाड़ी बाहर निकालें तो आपने खुद ही देखना होता है कि लेफ्ट और राइट से गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप अपनी गाड़ी उस रोड पे डाल देते हो, और अगर आ रही होती तो आप क्या करते हो, रुक जाते हो, खड़े हो जाते हो। और आप तो ये करते हो कि आप कॉन्स्टेंटली उस रोड को मॉनिटर करते रहते हो। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि अगर कोई डिवाइस कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहे तो वो अपनी एनर्जी, अपनी पावर जाया करेगी। तो वो एक खास वक्त, एक एक रैंडम टाइम वेट करेगी और फिर देखेगी अब खाली है तो अपनी गाड़ी, अपना सिग्नल मीडियम पे डाल देगी, और अगर अब भी खाली नहीं है फिर वो बैक ऑफ कर जाएगी, फिर वो रुक जाएगी एक रैंडम टाइम के लिए। रैंडम का ना समझो, रैंडम कह रहा हूं, डिटर्मिनिस्टिक नहीं कह रहा, फिक्स नहीं कह रहा। इसकी रीजन है, अगर ये फिक्स होता तो दो गाड़ियां अगर इस रोड को देखती दोनों को मिलता कि ये वो है बिजी है, और प्लान तो अगर ये फिक्स होता तो दोनों एक फिक्स टाइम के बाद फिर देखती तो दोनों के लिए खतरनाक था कि अगर खाली भी होता दोनों डालते फिर भी कोलिजन कर जाते। इसलिए इट शुड बी रैंडम, इट शुड बी वेरिएबल। क्लियर है क्यों शफक? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जी कैरियर सेंस आप समझ गए कि कैरियर सेंस क्या चीज है, कि कोई भी मीडियम पे जाने से पहले हम चेक करेंगे। मिसाल ले लेते हैं पहले, अगर मैं हब की एग्जांपल ले लूं, ये मैंने हब बना दीजिए एक, ये हब, हब के साथ मैंने मुख्तलिफ डिवाइसेस, लैपटॉप, पाम टॉप जो भी है, वर्क स्टेशन, सर्वर जो भी है, आई डोंट केयर, वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिए। मे आई कॉल इट PC1, मे आई कॉल PC2, मे आई कॉल PC3, मे आई कॉल PC4। अब क्या होगा, अगर PC1 wants to talk to PC3, for example, if PC1
wants to talk to PC3, for example, what will happen? Ladies and gentlemen, it will first check the medium. It will sense the medium. Carrier sense, CS. It will perform the CS here and find whether the carrier is free. If free, I will put my signal onto this medium. And if it is not free, maybe at that time 2 is communicating with 4 or 2 is communicating with 3. इसका मतलब the medium is busy, not free. I will back out. PC1 will back out. ओके, बड़ी आसान सा सवाल है। आपका हर डिवाइस के अंदर ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। तो ट्रांसमीटर आप रिसीवर अगर आप किसी उस पर लगा दें, अगर आपको कुछ मिलता है रिसीवर पे, इसका मतलब है कि मीडियम बिजी है। और अगर रिसीवर को कुछ नहीं मिलता, इसका मतलब है कि कोई खाली है। ऐसा ही है ना? तो कैरियर सेंस का मतलब यह है कि आप डेटा डालने से पहले चेक कर लें कि आपका जो शेयर्ड मीडियम है क्या वो खाली है, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। और अगर आप समझते हैं कि खाली नहीं है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो मत इस्तेमाल करो, क्योंकि आप उसका डेटा भी खराब करोगे, गार्बेज करोगे उसको भी, और अपने को भी गार्बेज करोगे, जिसका ना उसको फायदा ना आपको फायदा। तो ये शुक्र है पाकिस्तानी नहीं है, वरना कहते दाई कोम्बा है। अगर डू यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन? समटाइम मैं एक वर्ड बीच में इस्तेमाल कर जाता हूं और इट इज नॉट क्लियर। नहीं, हमें आती है। आप तो यहां से ना, आई थिंक यू आर फ्रॉम पंजाब, थोड़ी सी लग जाती है। चलिए, अच्छी बात है जी। तो अच्छी बात यह है कि अब हमें दूसरे शहरों से भी लोग आके, बल्कि मुझसे इससे पहले भी कुछ फॉरेनर्स ने भी कांटेक्ट किया कि जी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका इदारा जो है, क्या हमें वहां पे जैसे दुनिया भर में होता है, हम तो उस लेवल पे नहीं है कि हम यहाँ आए आप और इस एकेडमी में हम पढ़े और हमें रहने की और सब फैसिलिटीज मिलेंगी। मैंने कहा हम अपने को नहीं दे सकते, तुम्हें कहाँ से देंगे, उधर ही रहो। वरना डेफिनेटली वी कैन अर्न, क्योंकि आप उनसे जो लेंगे, आप उनसे रुपीज में नहीं लेंगे, आप उनसे डॉलर्स में और यूरोज में लेंगे, तो यू कैन अर्न। लेकिन कौन समझाए? नहीं आओ, वापस आए जी। तो हम बात, अब आपको समझ आ गई कैरियर सेंस किसे कहते हैं। और ये मीडियम क्या है? एक का नहीं है, मल्टीपल एक्सेस। दिस मीडियम इज बीइंग शेयर्ड, जैसे ये मैंने अभी आपके सामने ये मीडियम बनाया, दिस मीडियम इज शेयर्ड बाय ऑल। तो इट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है मयूर? अब आ जाता है आखिरी बात, कैरियर कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन सीडी, कोलिजन डिटेक्शन। फातिमा, इसका मतलब यह है कोलिजन डिटेक्शन का कि ये भी तो हो सकता है कि यही आपका जो नेटवर्क आपको मैंने पहले बनाया, PC1 ने भी चेक किया, खाली था, PC2 ने भी चेक किया, खाली था, दोनों ने समझा कि खाली है, तो ये भी PC2 रेड सिग्नल डाल देगा और PC1 ग्रीन सिग्नल डाल देता है। ग्रीन, और इसका मतलब नहीं कि सिग्नल ग्रीन होता है, इसका ये नहीं मतलब कि सिग्नल रेड होता है, नहीं, आप दो मुख्तलिफ सिग्नल। अब जो ही दोनों ने डाला, लाजमी तौर पे सिग्नल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरफेयर करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर हम भेजते जाएं, वो मिक्स होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे PC1 का डेटा जो था वो 3 के लिए था, यहां पे मैं ग्रीन वो लगा देता हूं, ये ग्रीन टिक। और PC2 का डेटा जो था वो PC4 के लिए था, यहां टिक लगा देता हूं। लेकिन इस हब पे जब पहुंचता है तो सारा कुछ मिक्स हो गया, 1 का 2 का मिक्स, तो ना वो अब 4 के काम का, ना वो 3 का काम का। तो क्या करना चाहिए? डिटेक्शन कर लेनी चाहिए कि अगर कोलिजन हो जाए तो रुक जाओ, मत भेजो, जाया है। अब कैसे ये होता है? अभी सवेरा ने क्वेश्चन किया कि PC1 जब
भेजे तो साथ ही अपने रिसीवर को भी लगा दे कि जो मैं भेज रहा हूं क्या वही तकरीबन चीज इस मीडियम पे है। अगर वही है इसका मतलब कोई और भेज नहीं रहा तो मैं भेजता जाऊं। लेकिन अगर मैं भेज रहा हूं मिसाल के तौर पे +5 -5 और मुझे वहां पे मिल रहा है +10 -10, इसका मतलब कोई और भी उसमें ऐड कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई कोलिजन हो चुकी हुई है। इसका मतलब है जो भी कोलिजन को डिटेक्ट करे बैक ऑफ कर जाए। इसको कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। इसको कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। तो एक तरीके और यहाँ पे क्या हम कंटेंशन कर रहे हैं ना, जितनी भी नोड है PC1 2 3 4 दे आर कंटेंडिंग टू गेट द शेयर्ड मीडियम। कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ आ रही? क्यों फाद ओके ये मेथड। और अभी फाद ने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मैं अभी आपको देने लगा हूं। तो कॉन्शियस हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। आर यू हियर फाद? या फाद अमजद इज हियर। वो मैं वायरलेस लैन में इसको जवाब देना चाहूंगा कि ये जो हमारा देखिए उसने कहा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एज यूज्ड इन लेगेसी बस टोपोलॉजी। यानी कहने का उसका मतलब है कि अगर लेट करो ये एक बस है और इस बस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस आपके ग्रीन में कनेक्टेड हैं, तो लाजमी तौर पे दिस इज ए बस टोपोलॉजी। और यहां पर भी आपको ये क्लासिकल इथरनेट की एग्जांपल है, यहां पे भी आपको CSMA CD इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वन जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 4 4 PC कहते हैं, यहां भी वही पीसी है, PC1 PC2 PC3 PC4। तो अगर 1 2 से बात करना चाहता है या 1 3 से करना चाहता है या 4 2 से करना चाहता है, वट एवर, इट हैज टू फर्स्ट सेंस द मीडियम एंड दैट मीडियम इज मल्टीपल एक्सेस, शेयर्ड मल्टीपल एक्सेस। एंड ये नहीं कि अगर आपको मीडियम मिल गया तो बेगम हो जाओ, नहीं, उस जब आप सेंड कर रहे हो तो उस दौरान भी चेक करते रहो, डिटेक्शन करते रहो कि कहीं कोई कोलिजन तो नहीं हो गई। अगर हो गई तो रुक जाओ, क्योंकि आपका डेटा गार्बेज बन चुका है। और कौन सा किस तरह वेट करो? एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ करो। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का मतलब है कि आप एक रैंडम टाइम के लिए वेट करो और फिर दोबारा चेक करो। अगर खाली है तो भेज दो, नहीं है फिर वेट पे चले जाओ। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, ये तो हो गया से। तो मैंने आपको हब में भी ये चीज क्लियर कर दी, ये हब में भी क्लियर कर दी, और ये बस में भी क्लियर कर दी। अब आता हूं जी काइंडली एक्सप्लेन द ईथरनेट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो इस प्रोटोकॉल इस पे लेयर 2 पे चल रहा है, इस प्रोटोकॉल का नाम ईथरनेट है। ये जो वायर्ड लैन की टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का नाम, चाहे वो हब इस्तेमाल करे, चाहे वो स्विच इस्तेमाल करे या बस इस्तेमाल करे, इसकी लेयर 2 के ऊपर जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। तो ईथरनेट इज ए लेयर 2 वायर्ड लैन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी वो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हमें वायर्ड तार के जरिए कम्युनिकेशन करवाता है लेयर 2 पे। इस रूल्स को हम ईथरनेट कहते हैं। ओके मुबीन कम ऑन, अभी आपको लेयर 2 क्लियर करता हूं। क्या आपने लेट ज्वाइन किया मुबीन? सर क्या ये पॉसिबल है कि हर एक पीसी के लिए डेडिकेटेड मीडियम हो? यस। किसने का क्वेश्चन है? क्वेश्चन किसका है? सर मैं जरवा सर जरवा मेरा। का। जरवा अपने सवाल को 1 2 मिनट के लिए प्रिजर्व करो। वही क्वेश्चन मैं फिर इनको भी बताता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। पहले मैं इसको जवाब दे दूं मुबीन का। मुबीन ने कहा कि क्वेश्चन हाँ लेयर 2 क्या होती है। जेंटलमैन, हमने
शुरू में ये बात की है कि हमारी जो ये कम्युनिकेशन है, बल्कि कल भी, अगर आपने कल की क्लास भी लिया तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो एक मोनोलिथिक नहीं है, बल्कि हमने अपने कामों को, जैसे आप अगर, मुझे नहीं पता कि मुबीन मुबीन आप बताएंगे कि आप किस उसके स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, किस सेमेस्टर में है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? चले मैं खुद ये ज्यूम कर लेता हूँ, चले उसने कुछ लिख दिया, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में 8 सेमेस्टर होते हैं। इसका मतलब कि आपके पूरी डिग्री को 8 मुख्तलिफ फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। यही काम इंजीनियरिंग में भी होता है कि जी दिस इज योर सेमेस्टर 1, यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जो कि फंक्शन मतलब कुछ गोल्स हैं, कुछ पर्पसेस हैं जो कि आपने अचीव करने हैं। जब ये अचीव हो जाएंगे देन यू विल गो टू द नेक्स्ट पर्पस, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, फिनिश्ड, ओके, द टास्क इज अकम्प्लिश्ड। इसी तरह जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं मुबीन, तो हमने इसको भी मुख्तलिफ फंक्शंस में, जिसको हम लेयर्स कहते हैं, में डिवाइड किया हुआ है। एंड दिस इज माय लेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब इस लेयर्स को, जिस तरह के आपके 8 आपका समय बीएस है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस में है, भाई किसने रूल बनाए कि 8, 7 भी हो सकते थे, 9 भी हो सकते थे। इसी तरह यहां पर भी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज ने रूल बनाए कि 5 लेयर्स बनाओ, और उस मॉडल का नाम रख दिया गया टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आईपी मॉडल। अब इसमें जो पहली लेयर जिसके साथ मैंने लिखा है, इसको कहते हैं फिजिकल लेयर। जिसके साथ 2 मैंने लिखा है, इसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। जिसके साथ मैंने 3 लिखा है, इसको कहते हैं नेटवर्क लेयर। जिसके साथ 4 मैंने लिखा है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। जिसको मैंने 5 लिखा है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। अब क्योंकि क्वेश्चन जो था वो मुबीन का ये था, क्वेश्चन जो मुबीन का था वो ये था कि आप लेयर 2 क्या कह रहे हो। इसका मतलब है कि मैं कहना ये चाह रहा हूं मुबीन कि मेरा इस लेयर के ऊपर किस वक्त काम चल रहा है। ये जो, चाहे वो कंटेंशन बेस्ड है, कंट्रोल्ड है, ये सारा काम जो इस वक्त जो लेयर कर रही है मेरे लिए, दिस इज लेयर 2 विच इज नेम्ड एज डेटा लिंक लेयर। मिलकर जवाब आपको मुबीन? ओके। अब मैं आता हूं जरबा के क्वेश्चन की तरफ, कि जरबा के क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ओके जी। जरबा का क्वेश्चन ये है कि क्या डेडिकेटेड, इंस्टेड ऑफ दिस के शेयर करें, लड़ाई करें, क्या डेडिकेटेड भी हो सकते हैं? 2 एग्जांपल दूंगा, लैन में भी दे दूंगा, वैन में भी दे दूंगा। वैन में तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर ये आपका यूटी है और ये आपका नयाटेल है, यानी जो कि आपका आपका ईएसपी है, इसके दरमियान ये जो लिंक है ये शेयर्ड है, नहीं है किसी के साथ भी। इस पे ना एग्रीकल्चर वाले कुछ भेज सकते हैं, ना केएमसी वाले भेज सकते हैं, ना केसीडी वाले भेज सकते हैं, ना पेशा यूनिवर्सिटी वाले भेज सकते हैं। इट इज डेडिकेटेड। एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल आपको इथरनेट स्विच, ये मैंने राइट साइड पे बनाया हुआ है, दोबारा बना रहा हूं। ये स्विच है मेरा, और इस स्विच को के साथ मैंने मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं। अब ये डिवाइसेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डिवाइसेस, ये मीडियम डेडिकेटेड है इस PC1 के लिए, ये डेडिकेटेड है PC2 के लिए, ये डेडिकेटेड है PC3 के लिए, ये डेडिकेटेड है PC4 के लिए। PC4 का मीडियम PC3 नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो इसलिए यहां पे किसी किस्म की कंटेंशन या कंट्रोल्ड एक्सेस की जरूरत नहीं है। जी क्वेश्चन करें जरवा। यस सर, बट यूबे जब हब हब वाला आपने करवाया, इसमें तो ये शेयर्ड मीडियम था।
तो इसमें भी डेडिकेटेड यूज हो सकता था? जिसका डर था वही हुआ। रजरवा ने क्वेश्चन ये किया कि हब में भी तो आपने यही चीज बताई और स्विच में भी यही बता रहे हो, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। आंसर ये है जरवा कि ये जो हब है ये लेयर 1 डिवाइस है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ये सिर्फ रिपीटर का काम करती है। ये अभी मैंने लेयर्स बनाई थी ना मुबीन के लिए, तो उसमें जो हब आता है ये लेयर 1 पे है, जबकि ये जो स्विच है ये लेयर 2 पे। बिकॉज ऑफ दिस लेयर 1, ये सिर्फ जो डेटा इसके पास आता है ये सब की तरफ गिरा देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, फ्लड कर देता है। इस वजह से जरूरी है कि ये मेथड हम कंटेंशन बेस्ड इसमें पर इस्तेमाल करें। जबकि स्विच जो है ये लेयर 2 है, ये मैक एड्रेसेस के बेस पे काम करता है। इसलिए इसके अंदर कल शायद हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, हाँ इसी चैप्टर में पढ़ा है कि इसके पास एक मैक टेबल होता है। तो इसको पता है कि अगर PC1 ने PC3 से बात करनी है तो जब डेटा इसके पास आता है तो सिर्फ ये PC3 की तरफ गिरा देता है, और ये भी फुल डुप्लेक्स लिंक है। यानी अगर ये उस वक्त PC3 कुछ भेज भी रहा है तो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर है भी तो ये अपने इस पोर्ट के अंदर इसको बफर कर लेता है, और फिर बफर करने के बाद प्रोसेस करके इसको इस पोर्ट पे डालता है। इसलिए यहाँ किसी कंटेंशन की या कंट्रोल्ड एक्सेस की जरूरत नहीं है। मिल गया जवाब जरवा? यस सर, थैंक यू। गुड, गुड जी, यू आर वेलकम। करा करें ऐसे क्वेश्चंस। तो जेंटलमैन यही चीज अब ये एक्सप्लेन कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। कहता है जी कंटेंशन बेस्ड में एग्जांपल लेता है CSMA CD की, जिसमें कहता है कि जी ये मेथड आपके लिगेसी ईथरनेट में, लिगेसी ईथरनेट से मुराद जब आप बस इस्तेमाल करते हो या जब आप हब इस्तेमाल करते हो, तो इस ईथरनेट, पुराने ईथरनेट का नाम है क्लासिकल ईथरनेट या लिगेसी ईथरनेट। फिर ये कहता है कि जी ये मेथड चाहे दोनों में से कोई भी हो, ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। यानी जब ये सेंड कर रहे होते हैं तो रिसीव नहीं कर सकते, जब रिसीव कर रहे हैं तो सेंड नहीं कर सकते। तो फिर कहता है कि जी ओनली कोलिजन डिटेक्शन प्रोसेस इज टू गवर्न व्हेन द डिवाइस कैन सेंड, एंड व्हाट हैपेंस इफ मल्टीपल डिवाइसेस सेंड एट द सेम टाइम। जरवा फिर क्या होगा, अगर मल्टीपल डिवाइसेस सेंड करती हैं सेम टाइम पे तो क्या होगा, कोलिजन। अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक ही वक्त में सेंड करना करते हैं, कोलिजन। कोलिजन का मतलब वेस्ट, गार्बेज। क्लियर हो कि मेरी बात? फिर ये कहता है कि जी आपकी कोलिजन डिटेक्शन का क्या प्रोसेस है। मैंने पहले बताया कि जी प्रोसेस ये है कि आप सेंडिंग के साथ साथ रिसीविंग भी करें, यानी कि सेंडिंग के साथ साथ बोलने के साथ साथ इन अदर वर्ड लिसनिंग भी करें जी। बिल्कुल, लेकिन आपके पास आप उस वक्त रिसीविंग जब आप कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ इसलिए आपने आपने रिसीवर को ऑन किया, मीडियम को आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आप सिर्फ उसमें अपने रिसीवर तो ऑन है ना, रिसीवर सिर्फ सुन रहा, सॉरी रिसीवर सुन रहा है, उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं इस वक्त ट्रांसमिट कर रहा हूं तो मेरे पास डेटा भी आ रहा है, सिर्फ देख रहा कि जो मैं भेज रहा हूं ये वही है। अगर है तो गुड, नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। ठीक है, तो डिवाइसेस डिटेक्ट कोलिजन। जब डिवाइसेस कलेक्शन, अगर डिवाइसेस डिटेक्शन मालूम कर ले तो उनको क्या करना पड़ेगा, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करना होगा, और रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा चेक करना होगा, अगर खाली है तो रीट्रांसमिट, अदरवाइज स्टिल वेट। बात समझ आ रही? देन इज the other important part, and that is the CSMA CA। ये जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल्स दी CSMA CA CD की, ये ईथरनेट में जैसे मैंने कहा कि इंप्लीमेंट होते हैं
क्लासिकल इथरनेट में, और इस क्लासिकल इथरनेट को किसने स्टैंडर्डाइज किया है? IEEE ने। और इनके स्टैंडर्ड का नाम है 802.3। 802.3। अभी मैंने आपको टोकन रिंग की एग्जांपल भी दी। टोकन रिंग को टोकन रिंग को भी IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया, और इनके स्टैंडर्ड का नाम है 802.5। ठीक है। अब हम आते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक की तरफ, विच इज CSMA CA। क्यों पसंदीदा का? क्योंकि ऑल ऑफ यू आर यूजिंग WLAN, वायरलेस लैन। ठीक है ना? कोई भी आप में से एक भी नहीं है ऐसा जिसने जो कहे कि मैंने कभी जिंदगी भर WLAN इस्तेमाल नहीं किया। चाहे आप अपने लैपटॉप पे करते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन पे करते हैं, टैबलेट पे करते हैं, बट यू हैव यूज्ड इट। नहीं तो कम से कम BRT में तो इस्तेमाल किया ही होगा, उसको तो आपने नहीं छोड़ा होगा। ठीक। अब ये इसमें और उसमें फर्क क्या है, और ये बताता चलूं कि इस WLAN को भी IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया है, और इनके स्टैंडर्ड का जो नाम है वो है 802.11। 802.11। अब ये कैसे करता है जी? क्योंकि कि ये बाकी चीज सेम है। CS फॉर कैरियर सेंस, MA फॉर मल्टीपल एक्सेस, CA इज फॉर कोलिजन, सॉरी, कोलिजन, शाबाश, एवॉइडेंस, कोलिजन एवॉइडेंस। क्यों? क्योंकि हम डिटेक्ट कर नहीं सकते। हम वायरलेस में कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर क्या हल है? एवॉइड करो। क्या हल है? एवॉइड करो, कोशिश करो कि बचो, इन अदर वर्ड्स। ठीक है आयशा? एवॉइडेंस समझ आई? कशफ, इधर कशफ है, उधर आयशा है। अच्छा, शफक, ओके। एवॉइडेंस समझ आ गई, क्या मतलब कहना चाहता हूं? ओके नदीम, आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं हम डिटेक्ट कर सकते? इस वजह से कि अगर मैंने यहां से अपना सिग्नल दिया, ये मेरा एक्सेस राउटर यहाँ पे इस सीलिंग में पड़ा हुआ है, एक तरफ मेरा डिवाइस है लैपटॉप, दूसरी तरफ वो पड़ा हुआ है। इवन आप दो लैपटॉप्स को भी वायरलेसली बात करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि मुझे एक 30 सेकेंड, इसका मतलब ये है कि है कि मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। एक तरफ ये एक्सेस रूटर है, और दूसरे तरफ मेरा डिवाइस है जिसके अंदर इतनी बड़ी चीज लगी हुई है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। दिस इज ए dongle definitely, but it contains an NIC card, network interface card। इवन अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरह नहीं देखना चाहते, इस तरह नहीं देखना चाहते,
ध्यान देख लो, ये आपको एक अदद कार्ड ये दिखाई दे रहा है, ये मेरे लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है। तो ये कार्ड इसके साथ कम्युनिकेट कर, ठीक हो गया। ये कार्ड जो यहाँ पे है, ये कह लो या ये कह लो कि ये डोंगल इसके साथ बात कर रहा है, एक्सेस रूटर के साथ बात कर रहा है। क्लियर होगी मेरी बात जी? अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने यहां से सिग्नल भेजा, मुझे क्या पता कि वो सिग्नल हो सकता है, या तो ये फासला जो है लेट करेंगे बेबी 20 फीट है, ये 100 फीट भी हो सकता है, ये 70 फीट भी हो सकता है। तो मुझे क्या पता कि हो सकता है वो 70 फीट पे जाके कोलाइड कर जाए। तो मैं उसको डिटेक्ट किसी सूरत भी, क्योंकि ये मीडियम जो है वहां तो तार थी, उसके ऊपर मैं देख सकता था कि जो मैंने भेजा है वही है कि नहीं है, या उसके आसपास है। ये तो हवा है, इसका तो मैं नहीं ये कह सकता कि मैं डिटेक्ट कर लूंगा कि मेरा सिग्नल जो है डिटेक्ट कोलाइड हुआ है कि नहीं हुआ, कोलाइड हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए यहाँ कोलिजन डिटेक्शन किसी सूरत भी पॉसिबल, इशफाक क्या बताया था उसने, सॉरी लेस देन अ मिनट, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, डोंट गो अवे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट दी कोलिजन, दैट द रीजन। जब आप किसी चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोशिश करो कि बच जाए, एवॉइड कर दो। इन अदर वर्ड्स क्या कर दो? एवॉइड कर दो। अब इसके लिए क्या तरीका है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तरीका ये है कि हम, एक चीज है आरटीएस, ये ना समझना कि ये कोई इलेक्शन का तरीका बताना शुरू हो गया हूं, वहां भी आरटीएस था ना। तो ये आरटीएस डिफरेंट है। ओके, कंटिन्यू। आरटीएस स्टैंड फॉर रेडी टू सेंड, और इसके साथ है सीटीएस, जो कहते हैं क्लियर टू सेंड, क्लियर टू सेंड। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं, मिसाल तौर पे ये मेरा लैपटॉप है L1, जिसके अंदर मैंने बताया कि या तो ये डोंगल लगा हुआ है, और या इसके अंदर ये कार्ड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये लगा हुआ है, ठीक है। और क्लास खत्म, मुझे चेक करना है खुला हुआ ये कार्ड पड़ा हुआ था, मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। बाद में वो दिखा दिए ना कि ये कार्ड। और ये अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ये कार्ड है, ये क्या करता है, जब भी इसने ट्रांसमिशन करनी होती है तो ये वाला सिग्नल आरटीएस का एक फ्रेम बना के भेज देता है, जिसमें 3 चीजें होती हैं। एक इंपॉर्टेंट 3 चीजें, एक सोर्स एड्रेस यानी अपना एड्रेस यानी सोर्स मैक एड्रेस। कौन सा एड्रेस? मैक एड्रेस। दूसरा, जिसको भेजना हो यानी एक्सेस रूटर, मिसाल के तौर पर इसका एड्रेस। डेस्टिनेशन का एड्रेस नंबर 2 डीए। और तीसरा, मुझे कितनी देर के लिए ये चैनल कब्जा चाहिए, मैं कितनी देर इस्तेमाल करूंगा, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, वट एवर, यानी कि ड्यूरेशन। ये 3 चीजें डाल के मैं भेज देता हूं। इससे क्या होगा, जितने भी मेरे आसपास यहाँ पे डिवाइसेस हैं, अगर हैं, हो सकती हैं, वो सुन लेंगी कि जी इतने टाइम के लिए कोई मीडियम को इस्तेमाल करने
का सोच रहा है, सोच रहा है। अगर ये आरटीएस किसी और के साथ कोलाइड कर गया, जो कि हो सकता है, अगर किसी और ने भी उसको अपना आरटीएस भेजा या उसका डेटा जा रहा है, उसके साथ अगर ये कोलाइड हो गया तो आरटीएस क्या हो जाएगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब है कि गार्बेज हो जाएगा। और ये गार्बेज जब एक्सेस रूटर को मिलेगा तो कम से कम उसको आरटीएस नहीं समझेगा, तो जवाब इसको नहीं देगा। जब जवाब नहीं आया इसका मतलब है कि मीडियम क्लियर नहीं है, अवॉइड करो, मत भेजो अपना डेटा। क्योंकि आरटीएस एक छोटा वो है, अगर एक छोटी चीज है कोलाइड हो भी गई तो वो डजेंट मैटर, उसमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं है, वेट करो। हाँ, अगर किसी और को ये वो नहीं हुआ, अगर किसी और को भी के साथ ये कोलाइड आरटीएस नहीं हुआ, तो ये ठीक ठाक हटा कटा आरटीएस एक्सेस रूटर के पास पहुंच जाएगा। और जब ये एक्सेस रूटर के पास पहुंच जाएगा तो वो इसको सीटीएस यानी क्लियर टू सेंड का मैसेज वापस भेज देगा। और वो सीटीएस भी, इसके आसपास के लोग भी आरटीएस को भी सुन लेंगे, सीटीएस को भी सुन लेंगे, आरटीएस को भी सुन लेंगे, सीटीएस को भी सुन लेंगे। इसका मतलब है कि उनको पता चल गया कि कितनी ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे कोई सिग्नल जाएगा। इसका मतलब उस दौरान हमें किसी सूरत भेजना नहीं चाहिए। और वो सीटीएस इसके पास अगर आ गया, आरटीएस के बाद सीटीएस के पास आ गया, इसका मतलब है इसको लाइसेंस मिल गया कि तुम इतने सेकंड्स के लिए या मिली सेकंड्स के लिए तुम ये अब अपना डेटा भेज सकते हो। तो यूं इसने कोलिजन को क्या किया? अवॉइड किया। कोलिजन को क्या किया? अवॉइड किया। सर आरटीएस क्या है? आरटीएस इज रेडी टू सेंड, यानी ये बता रहा है L1 कि आई एम रेडी, बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है जरवा कि उसको इजाजत मिल गई हुई है, वो अपने आप को कह रहा है जी आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। गॉट इट? यस सर। और इस सीटीएस और आरटीएस में मैंने कहा ना टाइम है ना, ड्यूरेशन है, वो ये तमाम डिवाइसेस अपने पास नोट कर लेंगे। इसको कहते हैं प्रॉब्ली एनवीए, नेटवर्क वेक्टर। ये वेक्टर है जिसके अंदर वो आप ये वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं कि इतने टाइम के लिए हमने नहीं इस मीडियम को इस्तेमाल करना, और फिर ये अपना डेटा भेज देता है। और हर डेटा जो ये पैकेट फ्रेम भेजता है उसको ये एक्नॉलेज करता है। तो यूं कंफर्म हो जाता है कि जो डेटा मैंने भेजा है वो वाकई कोलिजन के बगैर पहुंच चुका है। बात समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड आरटीएस एंड सीटीएस एंड दिस इज कॉल्ड कोलिजन अवॉइडेंस। तहरीर, सर आरटीएस और सीटीएस का आने का कैसे पता चलेगा? बाकी नेटवर्क्स को की कर होगी फिर डिवाइड करे उस टाइम को। मैंने यह कैसे कहा कि आरटीएस और सीटीएस, एक क्वेश्चन जो मुझे समझ आई तहरीम की वो ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये आरटीएस है, कैसे पता चलेगा ये सीटीएस है। अगर ये सवाल नहीं है तो रिपीट कर लेना तहरीम, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं। आरटीएस और सीटीएस का एक खास पैटर्न है। अगर वो पैटर्न का फ्रेम जा रहा है तो ये कंफर्म है कि ये आरटीएस है। और उसका जवाब सीटीएस का अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को देख के सबको पता है नहीं कि IEEE 802.11 ने किया क्या, यही तो किया। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये दो पैकेट्स डिफाइन किए हुए हैं कि जिसने भी भेजना है तो भेजने से पहले आरटीएस का ये फॉर्मेट है, ये चीज है जिससे पता चलेगा कि ये आरटीएस है। इसका मतलब इसमें सोर्स एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा और ड्यूरेशन होगी। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए है, ड्यूरेशन जो है आसपास वालों के लिए है कि वो सुन लें कितने टाइम के लिए कोई और ना भेजे। डू यू गॉट द आंसर तहरीम?
किसकी बचे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा कि अगर अभी आप जो एग्जांपल की सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारी ये वाईफाई है, कि जब भी मैं यहाँ से कोई चीज मिसाल, तो अभी मैं कोई अपनी ये मेरी वॉइस मेरी वीडियो, आप समझते हैं ना कि इसी तरह का एक डिवाइस यहाँ पे छत में पड़ा हुआ है, तो जब भी यहाँ पे इसके बाद डेटा आता है ये इसको एक आरटीएस भेजता है कि जी मेरे पास डेटा है, ये उसको कहते हैं हाँ भेज दो, और कोई नहीं भेज रहा, ये इसको भेजना शुरू कर देता है। इसी तरह जब इसने अपने एक्नॉलेजमेंट भेज दी तो जहां तुम्हारा डेटा मिल गया है, तो ये भी इसको आरटीएस भेजता है, जवाब में इसको सीटीएस मिलेगा। तो इनके दरमियान ये आरटीएस सीटीएस की वजह से ये चैनल, ये मीडियम, इनके लिए कह लो कि कुछ देर के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है ताकि कोई और उसको इस्तेमाल नहीं करता। तो दैट इज एन बिग गुड एग्जांपल ऑफ योर आरटीएस एंड सीटीएस। मल्टीपल यूजर अगर भेजेंगे तो दोनों का आरटीएस आपस में कोलाइड हो जाएगा, दोनों का आपने जब कोलाइड हो गया तो सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस सब कुछ गार्बेज हो जाएगा, कोई भी उनको लेने वाला नहीं होगा, जवाब नहीं आएगा। जवाब ना आने का मतलब है कि आप नहीं भेज सकते हो। जी बिल्कुल करता है, इसमें कौन सी हम गलत बात है, लेकिन आपको लगता है कि जी ये साइमल्टेनियस है, लेकिन वहां पे अगर एक चैनल है तो एक वक्त में जब आप भेज रहे हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इस सवाल के वो फिर जवाब देता हूं। मैंने अभी आपको कहा था कि जी टाइम डिवीजन, आपके शायद क्वेश्चन था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो आपने ये नहीं सोचा कि जी 30 बंदों के बाद इस बंदे की बारी आएगी तो डिले आना चाहिए, लेकिन जवाब इसका ये था क्योंकि ये डिवाइस बहुत तेज है, तो ये 30 बंदों के पास जाने के बाद फिर भी वापस के पास आती है, तो इसने जो बातें की मैंने बफर में रखी है ये उसमें उस चैनल में उस स्लॉट में डाल देता है, इसलिए कभी भी डिले नहीं आता। तो यहाँ भी ये डिवाइसेस गीगाबिट्स में काम कर रही हैं, तो लाजमी तौर पे जब आप भेज रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स के ऊपर मल्टीपल यूजर उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज मैं इसको यहां रोकता हूं, कल हम एक बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट विल बी द डेटा लिंक फ्रेम। हम ये देखेंगे कि हमारा ईथरनेट जो है, ईथरनेट जो कि लेयर 2 टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या हेडर में ऐड होता है और क्या ट्रेलर में ऐड होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम दरमियान में जो पे लोड है ग्रीन में जो मैं बना रहा हूं इसको हम किसी सूरत भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो हम 14 बाइट्स ऐड करेंगे हेडर में और 4 बाइट्स ऐड करेंगे ट्रेलर में, हम इसकी एक्सप्लेनेशन कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इसके जब हम समझ जाएंगे हेडर क्या करता है ट्रेलर क्या करता है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ईथरनेट का फ्रेम कैसे बनता है और क्या करता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी करें। सर ऐसा हो सकता है कि अभी उसी हो गया है, चैनल का लिंक बन गया और मेन डेटा अपना ट्रांसफर हो गया, मेन डेटा कब तक ट्रांसफर होगा, उसको जीबी फाइल में भेज दो, ठीक, और टाइम नहीं है। और टाइम तो नहीं है, डेफिनेटली आपने ठीक कहा। हमने कहा ये रिक्वेस्ट आप पर फ्रेम कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट पर फ्रेम है। फ्रेम का एक मिनिमम और एक मैक्सिमम साइज होता है, जैसे मिसाल के अगर ईथरनेट है इसका मिनिमम साइज जो है 64 बाइट है, मैक्सिमम जो है वो 1518 बाइट्स है। इस तरह आपका वाईफाई, क्योंकि आपने वाईफाई से क्वेश्चन किया, उसका मैक्सिमम साइज 2300 बाइट्स है। तो ये नहीं कि आपने एक दफा गीगाबिट के लिए ले लिया, गीगाबाइट्स के लिए ले लिया, बस अगले 2 साल आपका है। मिल गया आंसर? एनी अदर क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अबू जर, फातिमा, हरीम, खिजर, एनी क्वेश्चन? नो। तो चलें, we stop सर here and inshallah we'll be starting again from the सर topic 6.3 data link layer, which is chapter number 6, and inshallah we'll be continuing with this. Till then, Allah Hafiz.